Kalyan sir, Nilesh sir, Rekha ma'am, I think we should start it with this session because as ma'am is saying, sir has some busy schedule, so we should start with that. Okay. We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them. A very well said by Albert Einstein, a great physicist. Good afternoon to all. I, Naisamir, Head Institute of Law, RNTU, welcomes you all in 2 days workshop on design thinking, critical thinking, and innovative design. I feel privileged to extend my warm welcome to our speaker, Dr. Kalyan Chakravarti Tirunagari sir, an international speaker, visiting professor, and life skills coach. I also extend my hearty welcome to Dr. Sajeev Gupta sir, Dean Academics. Unfortunately, he's not here. He's busy in his schedule, so he was about to come, but he's not able to come here. I also welcome Dr. Nilesh Sharma, Dean Institute of Law, RNTU, Dr. Kiran Mishra, Dean Faculty of Education, RNTU, Professor Rekha Gupta ma'am, Faculty of Education, Rabindranath Tagore University. And I also welcome all the members of Institutions Innovation Council, RNTU, and all my dear students. Moving further, I would like to sorry for the interruption. There was some technical issues. So I was not able to continue with that. Extremely sorry. This is what technical issue is. So moving further, I would like to give a brief introduction about the 2 days workshop on design thinking, critical thinking, and innovative design. Our speaker, Dr. Kalyan sir, will be dealing with critical thinking on day 1 and on creative thinking and innovation on day 2 of our workshop. Now, just a little housekeeping before we get started. If you all have any questions, please type them in the chat box or in Q&A box. Now, without further ado, I would like to share a brief introduction to our speaker, Dr. Kalyan sir. Dr. Kalyan sir, he has many areas of expertise. He has an expertise in online teaching, training, ELT, business communication, cross-cultural communication, technical communication, crisis communication, teacher education, basic education, entrepreneurship, lateral thinking skills, multiple intelligence, team building, leadership, stress management, research, and publications. Sir is also specialized in ELT, EFL, ESL, ESP. He has about 2 decades of hands-on teaching, training, and research expertise in the Middle East, Oman, and UAE, Myanmar, Turkey, Maldives, and India. Sir is also a visiting professor and life skills coach in Engineering Staff College of India, ASBM University, Odisha, Sagar Group of Institutions, and MCR HRD Institute, APPC Hyderabad. Sir has also been a resource person and trainer in India, Oman, Philippines, and Myanmar, and presented about 160 webinars or online sessions and workshops on ELT, ESP pedagogies, curriculum design, creativity and innovation, community engagement, leadership, team building, and various life skills. Sir is also a member of Board of Studies, English Language and Literature in Shri Padmavati Mahila Vishwadyalam, Women's University, Tirupati, Andhra Pradesh, and also in Malareddy University, Hyderabad. Sir is also an author of books in ELT in Oman and India, that is Experiments in EFL, ESL, ESP, and CALL, and in Soft Skills for Managers, Vistantra, India. Sir is also a founder of Knowledge, Attitude, and Skill Services, Hyderabad, India. With these words, there is a lot of about Sir to speak, but as we have a short of span of time, Sir has some tight schedule. With these words, now I invite our speaker, Dr. Kalyan Chakravarti Tirunagari sir, to please start this session. Over to you, sir. Thank you so much, Naisamir. And I'm thankful to the Vice Chancellor and various deans, Registrar Sir, and the management of Rabindranath Tagore University for inviting me, for identifying me as a
speaker and inviting me to this August gathering. I'm glad to know that very few universities in India are thinking of organizing webinars on such topics as you have decided: critical thinking, okay, design thinking, all these things. So I appreciate you on the outset for doing this. Am I audible to you people? Any resound is coming, ma'am? Yes, sir, you're audible. Yeah, no resound, na? Clear. Yes, Okay. clear. Right. So I think mostly your postgraduates and undergraduate students have joined here. What is the audience here? Yes, May I know? sir. PG as well as UG, both the students. Yes, sir. Right. So these postgraduates and undergraduates are always under a continuous pressure as to think about what is going to be the future and what's going on in the present, because 2 lockdowns we have seen and third wave has just at the verge of passing away. So some are saying that nothing is going to happen, and some are saying that it will be there little bit. So socio-economic, so many situations, environmental, so many situations are changing rapidly. And it is so in the education department also, particularly when we think about higher education in India, which has gone under turbulence for the past 2 years. So many parents, administrators, students, everybody is worried as to what is going to happen. So that's why I said this topic is rightly chosen: critical thinking, design thinking, and entrepreneurship, innovation, whatever we are talking about. All these are the offshoots of some crisis situation, some conflict. So the other day we were discussing about conflict management, which is very much relevant to this critical thinking. When does this critical thinking start? Usually, when somebody is under some crisis, some conflict, this critical thinking will start. But as educators, as academicians, as professionals, we always try to give our best to our students. That's the reason why we are talking about these things. So I think we can allow some of the students, if they raise hand or something, organizers, I request you, if any student raises hand, kindly allow them to speak. Whenever we are Sir, doing actually something. they can write in the chat box. They can write in the chat Only box. writing option is. Yes, sir. Yes. Let them write any queries Kalyan sir, initially please, or in the middle Kalyan sir, during the course of थोड़ा my presentation. Yeah. कल्याण सर Yes, ma'am. हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हैं Yes. इसमें, तो थोड़ा सा लैंग्वेज हिंदी, थोड़ा इंग्लिश, हाँ, ठीक. बहुत लैंग्वेज. Right. Okay, translation method. So हम अंग्रेजी में बात करते जाएंगे, आप लोग हिंदी में तर्जुमा करते रहिएगा, बिकॉज हमारी हिंदी दुर्बल है. साउथ इंडिया में थोड़ा इंग्लिश में ही बोलिए, प्रॉब्लम होता है, बट थोड़ी सी थोड़ा सा हिंदी बोल दीजिएगा. नहीं, मैं कोशिश, हाँ, कोशिश करूंगा. और मेरा ऑनलाइन कोर्स चल रहा है हिंदी में, कोई मुझे सिखा रहे हैं हिंदी ऐसा बोलना चाहिए, तो मैं सीख रहा हूँ, तो कोशिश करूंगा. ओके, नो प्रॉब्लम. सो हम ये कह रहे थे, 2-3 लॉकडाउन के बाद एक ऐसा माहौल बन गया है दुनिया में, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, इंडिया हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं कुछ क्राइसिस, कश्मकश चल रहा है दिमागों में, दिलो दिमाग में. तो एजुकेशन सेक्टर उससे अलग नहीं होता है. इंडस्ट्रीज अंडरगोइंग सम क्राइसिस, हायर एजुकेशन इज अंडर क्राइसिस. अभी अंडर ग्रेजुएट कर दिए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या करना चाहिए, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इज आल्सो कमिंग टू एन एंड, और आगे क्या करना चाहिए. ऑल दिस क्वेश्चंस आर इन द माइंड नाउ. ओके, सो दिस इज द राइट सिचुएशन. बहुत सही समय है. क्रिटिकल थिंकिंग, ये इस पे बात करना जरूरी हो गया.
सो आगे बढ़ते हैं. कोई उसमें चैट में टाइप कर रहे हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा बीच बीच में पढ़ते रहिए. नाइस जी और किरण जी, कोई भी चैट देख रहे हो थोड़ा बीच बीच में मुझे याद करवा दीजिए. दिस इज द क्वेश्चन, सो आई विल बी एबल टू डू सम Okay, sir. जस्टिस. Yes, sir. बताइए क्या लिखा गया. Sir, अभी तो ये लिखा है कि so they are writing, they are wishing good afternoon, अभी तो, and some right. students have written Thank that. Yes, sir. Yeah, right. Thank you. That's good. So let me share my presentation. Is it visible? So it's about to get. Yes, sir. Now it's Yes, visible. ma'am. Is it visible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, right. So critical thinking पे बात चल रही है, आगे बढ़ते हैं. Now I request all the students visible. सबको दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. It's visible. Good. So who is this person in the picture? मैं नाम भी लिख दिया उधर, but what do you think? Kalyan sir, I request you, sir, your slide is not moving. And yes, sir. अभी मूव हुआ है? नहीं sir. No, sir. तो फिर शेयर करते हैं. Yeah, I will share Yes, it sir. again. अभी दिख रहा है? Sir, I think it's about to is starting the screen sharing. Not yet. हाँ, वो इंटरनेट का इश्यू है. Now, is it visible now? Yes, sir, it's visible now. So look at the picture. All the students, इसमें कुछ दिया गया है, एक तस्वीर है. So Sorry, sir. Sir, there it's is a still person not called Jason, moving. is graduate from Siram College. Recently. Sir, I request you to please click on the slide itself. I request you to please click on the slide, second slide. I think it's not moving from that side. It may move from the left side. Please. Left side. I don't know. It's moving for me, ma'am. Sir, on the I think on the slide itself. Just click on the slide itself. Second slide. So your screen has stopped sharing. हाँ, वही मैं फिर से उसको कर रहा हूँ. Okay, sir. एक मिनट. दिख रहा है? Is it okay now, ma'am? So it's visible right now. आपका माइक बंद है, नाइस. हाँ. Yes, it's visible now. So picture, yeah, good. Thank you. Thanks a lot. Technology works Sir, sometimes. Sir, but the same slide is coming. Yeah. अरे ऐसे कैसे हो रहा है? I don't know. Sir, I'm just requesting you. No, sir, not at all, sir. So I'm just requesting you to click on the slide number 2. हाँ, तो इसको minimize करना पड़ेगा. Directly click on slide 2. हाँ, अभी दिख रहा है? Now? Sir, अभी first वाला. Yes, sir. Yes, sir. Now it's visible. Yes, sir. So it's visible. चलो मिनिमाइज में ही रखते हैं उसको, नहीं तो बार बार बैक जाना पड़ता है. मिनिमाइज में रखते हैं. So look at the picture here, and name is Aarti Dogra.
She is a graduate from Sri Ram College, Delhi, and she is an IAS officer. उनका कद है 3 फुट 2 इंच, बीच में दो तस्वीर में दिख रही है. डिजिग्नेशन है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अजमेर राजस्थान. So what can the students understand by looking at this picture? कुछ दिमाग में आ रहा है स्टूडेंट्स के, क्या लग रहा है देखकर? पार्टिसिपेंट्स जो भी आप लोगों को दिमाग में आ रहा है स्लाइड शीट देखने के बाद स्लाइड देखना, प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स. चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज. One of the students is writing that labor never goes in vain. Very good. Out. Competency. Suppose skills are suddenly not without. skills. Yes, sir. Skills are important, not the beauty. Competency is not bounded with the physical appearance. Physical appearance doesn't matter. Her thinking made her IAS officer. Height doesn't matters. Talent, hard work, and intelligence matters a lot. अगर कुछ करने की लगन हो तो हम जरूर कर सकते हैं. She has fought against all the prejudices. Great talent. अगर कुछ करने, yes sir. So, these much only. Your height doesn't define the heights you can achieve. Very good. Yeah, very good. ये बढ़िया है. So सही पकड़े हैं students. Very good. So in this small visual, so many things can be understood. अगर मैं नीचे नाम नहीं लिखता, just तस्वीर दिखा देता, इसमें ऑफिसर कौन लग रहा है, तो यू वुड हैव सेड वो राइट साइड जो लग रहे हैं ना वो सही लग रहे हैं सर, वो बड़ी ऑफिसर है. और लेफ्ट साइड वाले कौन है, साथ में शायद बैग पकड़ के चलने वाले हैं, ऐसा बोल सकते थे आप. बट आई हैव रिटन दैट ऑलरेडी. सो व्हाट मैटर्स इन लाइफ, क्रिटिकल थिंकिंग यही से शुरू होती है एक्चुअली. इज इट योर अपीयरेंस, जो आपका वेशभूषा होती है, और इज इट योर कॉन्फिडेंस, or is it your height, is it your weight or head weight? Head weight अलग है, जो असली weight अलग है. Head weight is different. किसी किसी दिमाग में कुछ स्थापित नहीं रहता, मगर weight ज्यादा होता है उनका. Head weight मतलब they don't have any ideas, any knowledge, any skill, but बहुत भारी समझते हैं अपने आप. So that is overconfidence. Confidence is good, but overconfidence is not at all good. Confidence should not be misunderstood as overconfidence. ये भी सोचते रहते स्टूडेंट्स, अगर मैं कॉन्फिडेंस दिखा दूंगा या दिखा दूंगी तो लोग समझते हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस, वो भी गलत है. सो एट एवरी एस्पेक्ट यू नीड क्रिटिकल थिंकिंग. जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, इज इट करेक्ट और नॉट? ये गोल जो मैं सेट किया ये करेक्ट है नहीं? जो करियर मैं चूज करने वाला हूँ या वाली हूँ, ये सही है गलत? और किसका सुनना चाहिए, बड़ा जजमेंट चाहिए. देयर आल्सो योर क्रिटिकल थिंकिंग कम्स. जब अमिताभ बच्चन जी फिल्म के लिए ट्राई कर रहे थे, हीरो बनने के लिए, बहुत सारे ठोकर खाए उन्होंने. किसी ने बताया भैया आपको हीरो रोल तो दे सकते हैं, मगर आपका आवाज ऐसा है कि पूरा माइक फट जाएगा, साउंड बॉक्स उड़ जाएंगे, तो हम क्या करें? रोज एक माइक खरीदते रहेंगे. आपको रेडियो इंटरव्यू पर भी गए थे, वो आवाज भारी है, बहुत बढ़िया है, मगर हमारा डेली एक माइक बदलना पड़ेगा क्योंकि उतना भारी आवाज है वो. ठीक है सर. फिर फिल्मों में स्टडी किए, फिर जया बहादुरी जी भी बहुत सपोर्ट किए, हरिवंश राय बच्चन जी भी सपोर्ट किए, 2, 3, 4 लोग, उनकी माँ भी बहुत स्फूर्ति देते रहती थी, बेटा तुम करो कोई बात नहीं. फिर वो और कोई डायरेक्टर के पास गए ऑडिशन टेस्ट देने, सर मैं हीरो के लिए काम ढूंढ रहा हूँ. बढ़िया यार, कद भी बहुत 6 फुट 2 इंच 3 इंच 4 इंच है, ठीक है ले सकते हैं, स्क्रीन का साइज बढ़ाना पड़ेगा. ये सब सुनना पड़ा बच्चन जी. अभी देखिए कौन से मुकाम पर है. सो नोबडी हैज कम अप इन लाइफ विदाउट स्ट्रगल. ये लिखकर रख लीजिए. कोई भी हो, वेदर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हीरो हीरोइन, कोई भी हो, छोटा मोटा सक्सेस भी किया है, मतलब उसके पीछे बहुत बड़ा स्ट्रगल है.
तो वो लोग क्रिटिकल थिंकर्स है, उसको पता है दुनिया किधर भी जाए मगर आई कैन कंटिन्यू माई लाइफ, आई कैन डू समथिंग इन माई लाइफ। आवाज आ रही है ना? यस, दिखाऊंगा। यस सर, आ रही पहले है मैं सर, आ ज्यादा रही है विजुअल और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि ये दिमाग वाला चीज है ना। सर, आ अगर रही कोई है बट फिल्म होती थोड़ा मैं सा। वीडियो डाल देता। यस सर, आ रही है, बस सर थोड़ा सा बीच तो बीच में थोड़ा सा ग्लिचेस आ रहे हैं, बस और कोई बात नहीं। हाँ, रुक रुक के। यस सर, यस सर। हाँ, वो थैंक्स टू अवर साइंटिस्ट, उनका इंटरनेट सिस्टम ऐसा है। ओके सर। इंडियन इंटरनेट सिस्टम नहीं है ना मैडम, ये फॉरेन इंटरनेट सिस्टम है। और हमारा बच्चा लोग ज्यादा पढ़ के रिसर्च करके इंडियन इंटरनेट सिस्टम बनाओ, तब ठीक लगेगा। ये जूम जो चल रहा है अपना नहीं है, ओके। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी अपना नहीं है। यस सर, यस सर। I think because of some network issues, सर का थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से is not able to connect properly. I think I'll connect to him, so kindly be patient. मैडम Yes, sir. Sir, you're not audible Hello. also, and your screen is also not visible. Your voice is creating मैं some फिर noise. कनेक्ट Yes. किया। Yeah. Yes, sir. Yes. Again I connected. Let us see. Yes, sir. Yes, sir. अभी स्लाइड में आगे। Yes, sir. आ गए स्लाइड में। Is it visible now? Yes, sir. It's visible. नहीं, वो Total. इंटरनेट का इश्यू है, हमारा इश्यू नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. हमारा Yes, इसमें sir. कोई भी योगदान नहीं है इंटरनेट ऊपर नीचे जाने का। बिल्कुल सर, तो मैं बिल्कुल सर। स्टूडेंट से यही गुजारिश करूंगा, तो मेरा स्टूडेंट से यही गुजारिश है कि जल्दी पढ़ लिख कर एक साइंटिस्ट बन के पहले इंटरनेट बना दो। ऐसा बना दो कि पानी में डूबने से भी वो इंटरनेट लगा रहना चाहिए, बिल्कुल। और फ्लाइट में उड़ते समय भी इंटरनेट कंटिन्यूस चलना चाहिए। खाना पीना नहीं रहने पर भी चलेगा मगर इंटरनेट चलना चाहिए। ऐसा कुछ बना दो भाई जल्दी से। और कौन बनाएगा जरा अभी डिसाइड कर लो, वो वहीं से क्रिटिकल थिंकिंग शुरू करते हैं मैनेजमेंट वाले। और ये सब मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट वालों की जरूरत है, और इन सबको कौन सिखाएगा? शिक्षक का भी जरूरत है ना, तो बीएड एमएड वालों का भी जरूरत पड़ता है। और इन सबको मैनेज करने के लिए एमबीए वाले बीबीए वालों का जरूरत पड़ता है। और कोई खाना पीना छोड़ के काम किया, दवाई वही चाहिए ना, तो मेडिसिन वाले एमबीबीएस डॉक्टर भी चाहिए। तो सबको एक एक रास्ते पे लेकर चलना पड़ता है। तो नोबडी इज अनइम्पोर्टेंट, नोबडी इज ग्रेट, सबका कुछ ना कुछ योगदान है ना। चलिए। यस सर, और ये लीगली पिक्चर काम देखिए। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा। मैं सोच ही रहा था अगर कोई प्रॉब्लम में फंस गया तो लीगल वाले भी चाहिए, लॉ यस वाले सर, भी चाहिए। वो अंत में आते हैं, end में। हाँ, या तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ा देते हैं या तो सॉल्व कर देते हैं, दो चीजें हो सकती है। हाँ, चलिए। मैं पहले ज्यादा सवाल और विजुअल यूज कर रहा हूँ। मैं तो एक वीडियो डाल के बैठ जाता खामोश, आप सीख लेते। मगर मेरा अप्रोच मेथोडोलॉजी अलग है, ज्यादा प्रोबिंग क्वेश्चन करता हूँ, थोड़े विजुअल दिखाता हूँ ताकि वो दिमाग में थोड़ा तो भी घुसे। हाँ चलो। यस सर। स्टूडेंट जो भी मोबाइल में चैटिंग कर रहे हैं ना, वो बंद करके इधर ध्यान दे प्लीज। ओके, व्हाट डू यू थिंक? ये देखिए विजुअल्स, और क्या सोच रहे हैं। स्पीकिंग तो नहीं है, तो राइट योर कमेंट्स। यहाँ पर दो विजुअल्स है, दो पिक्चर। क्या दिख रहा है और क्या लग रहा है? Disparity in society, 153 students है। cleanliness, water bodies, but in too drastic survival. मैडम, Yes sir. हाँ गुड। Pollution is a dangerous for ये health. 153 स्टूडेंट्स में Growth in country. Negligence and responsibility. Nadi Swachhata Abhiyan. वेरी गुड। तो स्वच्छता है, नदी हो चाहे रोड हो, स्वच्छता अभियान है। Developing and developed nations.
Very good. Neat and clean, water pollution, clean river, Nami Ganga, irresponsibility and responsibility. Accountability should be taken. आगे Development mission. Yes, sir. Utilize the resources. Education की कमी. तो अपने आप को साफ रखने के लिए, सराउंडिंग साफ करने के लिए कौन सा एजुकेशन चाहिए आदमी को? जरूरत है एजुकेशन का। अब मेरे घर में जो कचरा कूड़ा जमा होता है वो बाजू वाले के घर के सामने फेंक दिया, वो उठा के और बाजू वाले के पास फेंक दिया, तो क्या होने वाला है कंट्री का? उसमें एक तो बंदा हो जो बाहर आके भैया इधर मत फेंको, उसमें कचरा है इसमें फेंको, ऐसा बोलने वाला जब तैयार होता है ना दुनिया में, हाँ इनिशिएटिव चाहिए। वो कहाँ से आता है? कोई तो एक क्रिटिकल थिंकर सोचता है भैया सभी फेंक रहे हैं, हम भी फेंक रहे, हम में और जानवर में कुछ तो अंतर होना चाहिए, तो थोड़ा क्लीन कर देते हैं। यस, वो भी क्रिटिकल थिंकिंग है। तो आप कहाँ से शुरू करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग? उसलिए मैं आई वांट टू सी व्हाट आइडियाज आर कमिंग, देन आई विल टेल यू व्हाट इज प्लानिंग, है ना? So need to proper planning, reality, imagination. तो कौन करेगा प्लान? क्या? हाँ, कौन करेंगे? इनिशिएट कौन करेंगे? गवर्नमेंट करना चाहिए, मैं सोच रहा हूँ, विधायक करना चाहिए और कोई सोच रहा है, हाँ, तो हम क्या करेंगे फिर एज एन इंडिविजुअल सिटीजन? सो वो स्टूडेंट लाइफ से ही स्टार्ट करना चाहिए। थोड़ा तो सोचो, अपने बारे में तो सभी सोचते हैं, थोड़ा सोसाइटी के लिए, थोड़ा आजू बाजू, अपना घर से शुरू होता है, ये चैरिटी हो कुछ भी हो, थिंकिंग वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। ओके, और एक दिखाता हूँ। बताइए, लिखिए। Rich and poor. Self-thinking. This is called poverty. Thinking level. Responsible for environment. No. Why they are writing this? Thinking. One wants ripped jeans. Oh my God. Fashion redefined. Poverty से ऐसा नहीं होता. एक शौक से है और एक मजबूरी से है. Another need clothes. Thinking level very poor of maximum Indian. पर्सनल थिंकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, वो सर पुराने का आंसर दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, पॉवर्टी एंड रिच गैप, ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, आई डोंट नो व्हाई दे गैप कहाँ से क्रिएट होता है ये रिच एंड पुअर? हाँ, ओके, लेट देम राइट, नो प्रॉब्लम, दे आर थिंकिंग, इट मींस राइटिंग मींस दे आर थिंकिंग ना, सो नो प्रॉब्लम, बट who is creating this difference, rich and poor का इतना अंतर difference, who is creating actually in the society? Again, some thinker is required ना, कोई economist, कोई MBA वाला, कोई बड़ा उद्योगपति, कोई तो चाहिए जो ये अंतर मिटा सकते हैं। पूरा कंप्लीट मिटा नहीं सकते मगर थोड़ा कुछ तो कर सकते हैं। और अच्छे खासे कपड़े खरीद के उसको काटना क्यों है, फाड़ना क्यों है? और ये बच्चे फटे हुए कपड़े भी लेके पहनने के लिए रेडी है, उसके पास नहीं है तो कर रहा है ना, जो है वो क्यों फाड़ रहे हैं, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब थिंकिंग वाली चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? पहले पिक्चर क्या है बताइए, बाद में सोचते हैं क्या हो रहा है। ये हमारा हैदराबाद का सीन है। पीछे जो बिल्डिंग दिख रहा है ना आपको, बिल्डिंग है कि नहीं वो पहले पकड़ी, तो क्या है पीछे, और आगे क्या दिख रहा है आपको, पीछे क्या दिख रहा है, पहले वो गेस करो फिर बताता हूँ मैं। एक हिंट तो दे दिया मैं। More things in small place. Car, joint family problems. Car, quality of India. बढ़िया बढ़िया गेस किए तो। Population. हाँ, थोड़े क्रिटिकल थिंकर है ऑलरेडी आपके पास। Car, more people in one family. Quality and level of thinking of human at different level. Look, matter every clothing. Overload in car, overfull. Accommodation, population explosion, overpopulation. Family love, हम साथ साथ रहेंगे. My God. Very good, very good.
ये सोच रहा है फेसबुक का और उसका इंस्टाग्राम का कुछ चर्चा चल रहा है, वो नहीं, सीरियस एकेडमिक डिस्कशन है। सेव मनी, बीच में स्पेस मैं विजुअल यूटिलाइजेशन। दिखा रहा हूँ। एक कार में बहुत से फैमिली मेंबर्स है, तो दैट्स फेसबुक कॉल्ड ज्यादा जुगाड़ आदत सर। हो गया ना। ट्रू। Yes, We are not equal to luggage. I appreciate all the responses. Yeah, I appreciate all the responses. जो भी जवाब दे रहे हैं सही है, ये गलत भी सही कुछ भी नहीं है। मैं जस्ट आई एम ट्राइंग टू एलिसिट व्हाट इज हैपनिंग इन द माइंड। अब इसको जितना समझ आया उतना ही बोलेंगे, तो वो कैपेसिटी को बढ़ाना है। क्रिटिकल थिंकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, उसको बढ़ाना है, उसके लिए माइंड को एक्सरसाइज देना जरूरी है। उसलिए मैं ये एक्सरसाइज क्रिएट किया। रात 2 बजे तक ये करता रहा, मैं सोच रहा था ये पोस्ट ग्रेजुएट से, अंडर ग्रेजुएट से क्या क्या सोचते होंगे, वहां से शुरू हुआ ये सब। तो एक कार में जो पीछे दिख रहे बच्चे कितने दिख रहे आपको? नंबर डालिए उसमें चार्ट में। ये फ्रंट है कि बैक है कार का? कार जिसने बोले हैं वो सही बोले हैं, और इज इट बैक और फ्रंट? Back. They are saying back. Some are saying 3. Sir, back and 2 children. वेरी गुड। Students are saying. हाँ, 2 चिल्ड्रन, वो उसमें क्यों बैठे शीशे में? इट इज ऑलमोस्ट दैट बैक ग्लास रहता ना कार में, Yes, sir. ग्लास को टच करके बैठा है, क्यों बैठा है ऐसा? एनी गेस? Not enough space. हाँ, Enjoy क्योंकि बैक सीट में और 4 ऑलरेडी बैठे हुए हैं। या optimum utilization. बैक Seats are सीट full में by कार में, members. या Enjoying childhood 4 लोग time. बैठा है। yes. No और फ्रंट में space. कितने होंगे एनी गेस? फ्रंट सीट में कितने होंगे एनी गेस? मैं वो फ्रंट वाला पिक्चर ढूंढ रहा था, नहीं मिला मुझे। फ्रंट का भी मैं फोटो ले लिया था, ये लाइव सिचुएशन है। एक जगह ऐसे ही क्लिक किया था, चारमीनार के पास। जो मेरे साथ थोड़े दोस्त भी थे, वो एरिया घूमे हुए हैं, वो जानते हैं। तो इमीडिएटली पिक्चर लिया मैं, गाड़ी रोक के। वो लोग बोले क्या सर, भरी सड़क पे रोक दिया, आप गाड़ी का पिक्चर ले रहे? मैं ऐसे, मैं चारमीनार का, वो पीछे चारमीनार है, वो 450-year-old मॉन्यूमेंट हैदराबाद। Yes, sir. वो जमाने का, वहां पर क्राउडेड प्लेस है ऑलरेडी, रोड पर भी भीड़ है, और उसमें से ये सज्जन कार चला रहे थे। ओके, तो फ्रंट सीट में ड्राइवर, मतलब फादर मदर, और उन मदर के ऊपर 2 बच्चे, और फादर स्टीयरिंग के पीछे भी एक छोटा लड़का बिठाया हुआ था। स्टीयरिंग सीधा नहीं घूम रहा था, फिर भी बिठाया वो। और पीछे सीट में 4-5 बच्चे, और जो बचे कुछ बच्चे हैं जो कार में है, मतलब घर में और भी होंगे पता नहीं, बच्चे कुछ बच्चे ये शीशे के पास, उनको अंदर ऐसा दबाया गया, तो बैग संदूक ऐसा लगाते हैं ना, ऐसा। सो बच्चे सफोकेट, बचेंगे कैसे? एंड नोबडी इज केयरिंग। ओ फ्रंट वालों को पता ही नहीं पीछे बच्चे हैं, रहे तो रहे या ना रहे, ऐसी सिचुएशन थी। तो आई Circuit network. in the country. Okay, पे पहुंचते हैं। So the ultimate cheat sheet पर critical thinking, यहाँ पर 4-5 क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिए। Who, what, where, when, why, how सामने होना चाहिए। अगर गलती से पेपर पेन पकड़ के बैठे हैं कोई स्टूडेंट्स, तो कृपया लिखिए, लिखने का कष्ट कीजिए। Who, what, where, when, why, how। और बीच में क्वेश्चंस भी दिए हम, बेनिफिट्स फ्रॉम दिस। कोई भी इश्यू है, आपको कोई डिसीजन लेना है, नाइस सर की आवाज नहीं आ रही है ना? हेलो कल्याण सर। हाँ सर के यहाँ शायद थोड़ा सा नेटवर्क का इशू चल रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट। तो गाइस आई कैन ओनली रिक्वेस्ट यू ऑल टू जस्ट बी पेशेंट। हम सर को कनेक्ट करते हैं, प्लीज बी पेशेंट। थैंक यू।
सर किसी ऑलरेडी फिर शायद वो कनेक्शन फ्लक्चुएट हो रहा Yes, है. sir. हेलो, कैन यू हियर मी? Sir. Yes, Yeah. sir. Yes, sir, because of network issues. Yes, sir. कल्याण सर, आवाज आ रही है आपको हमारी? हेलो. So students really wants to hear you. They are even writing. Yeah. Yes, sir. Kiran ma'am, I request you to please connect to Kalyan sir once, please. नाइट में इनको कॉल कर रही हूँ. Yes, sir. So I think it's disturbing, Yes, sir. but can't help it. Yeah, चलिए. So ये 6 सवाल लिखिए and take any issue और उसके ऊपर सोचना शुरू कर दीजिए. Maybe your career, is it audible, ma'am? नो सर. Yes, sir. It's audible, Madam, but it's your audible? screen is not visible. Sir, audible, but the screen is not visible. Yes, sir. Guys, please wait. We are just connecting to our speaker. There's actually he's somewhere out of station from his place, so that's why. Kindly request you all to please wait. Hello. Guys, we have. Can you hear Yes, me, sir. ma'am? Yes, sir. We can hear Sorry, you. बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है, इसलिए मैं मेरा वीडियो बंद किया, फिर लॉग इन किया. Okay, sir. Okay, sir. No issues, sir. Yeah. चलिए. So Yes, sir. exercise ये है कि think of one situation, your career, your goal, your future. Students के लिए बता रहा हूँ. और Yes, उस sir. पर ये 6 क्वेश्चन डालिए. Who is benefiting from this? For example, number 1 question. ये करियर जो चुना मैं, इश्यू जो डिसाइड किया और टारगेट जो सेट किया, गोल सेट किया, who is going to benefit from this? Obviously you are the person ना, आप बेनिफिट होने वाले हो. या आपका एजुकेशन से किसी और का उन्नति होने वाला है क्या? बेनिफिट होने वाला है.
ये सोचिए। फिर इज दिस, हु इज दिस हार्मफुल टू, ये करने से किसका नष्ट ज्यादा हो रहा है, हु मेक्स डिसीजंस अबाउट दिस, इसके बारे में कौन डिसाइड कर सकता है, हु इज मोस्ट डायरेक्टली अफेक्टेड, डायरेक्ट इफेक्ट किसको है, कोई भी हो, एजुकेशन हो, करियर हो, कुछ भी हो, हु पे सोच रहे हैं। बाद में व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस आपका डिसीजन में, व्हाट इज अनदर पर्सपेक्टिव, और कोई पर्सपेक्टिव है क्या ये सोचने में, अल्टरनेटिव कुछ है क्या, विकल्प बोलते हैं ना हिंदी में, सही बोला हूँ क्या मैं, हिंदी पता नहीं, मेरा ऑनलाइन टीचर से पूछता हूँ। Yes, sir. ओके, व्हाट इज अनदर अल्टरनेटिव, विकल्प, व्हाट वुड बी अ काउंटर आर्ग्यूमेंट, इस पे और कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट हो सकता है क्या, जैसा लॉ के प्रोफेसर है उनसे पूछ लीजिए, काउंटर आर्ग्यूमेंट कुछ हो सकता है। देन थर्ड मुद्दा है क्वेश्चन, वेयर वुड वी सी दिस इन द रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में ये कहाँ बैठता है, जो डिसीजन मैं लिया, करियर जो सोच रहा हूँ, डिग्री जो कर रहा हूँ, वे आर देयर सिमिलर कॉन्सेप्ट सिचुएशंस, इज देयर द मोस्ट नीड फॉर दिस, ये जरूरी है क्या जो मैं सोच रहा हूँ। अब किसी ने बोल दिया कि एप्पल का फोन चाहिए मुझे, 40,000 रुपए है, तो माँ बाप से भी लड़ने के लिए रेडी है, मुझे एप्पल ही चाहिए, क्यों बेटा, क्योंकि 10 लड़के लड़की लोग हमारे क्लास में जो पढ़ते हैं उनके पास भी एप्पल है, तो वो एप्पल खरीदने, वो एप्पल बनाने वाला खाने को कुछ नहीं था उसके पास, और जो खरीदने वाला है अभी एप्पल, वो घर बार बेच के भी खरीदने के लिए रेडी है। तो ये पैसा किधर जा रहा है, ये एप्पल आप नहीं खरीदने से कंपनी बंद हो जाएगा क्या, दुनिया का कोई नष्ट होता है एप्पल नहीं यूज करने से, एप्पल फोन अपना नष्ट हो रहा है ना। और एप्पल मैं खरीद लिया, 40,000 दे दिया, वो पैसे किसके पास चले गए, किसके पास चले गए, आंसर लिखते जाओ उसमें चैट में। वो भारत में नहीं आ रहा है पैसा, वो अमेरिका को जा रहा है, एप्पल किसका है उसके पास जा रहा है, और उसमें जो हिस्से पुर्जे जो बना है उसके पास जा रहा है। तो हम ढंग का एक फोन भी नहीं बना सकते क्या खुद के लिए, भारत के लिए, और जो भारत में बन रहे हैं वो कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं, चाहे बांग्लादेश का ही क्यों ना हो, मुझे बाजू कंट्री से करना है, खरीदना है मेरे, समथिंग फॉरेन मस्ट बी वेरी स्पेशल बोल के सोचते, आजकल का जमाना ऐसा है। सो ये वेयर सोचो, व्हाट सोचो, हु सोचो, when is the acceptable, when is this acceptable or unacceptable, ये एक्सेप्टेबल है क्या जो मैं सोच रहा हूँ, ये शांति से कहीं बैठ के सोचने वाले विषय है, पब्लिक में नहीं सोच सकते, उसलिए कागज कलम गलती से लाए हो तो लिख लो उधर, और कहाँ बैठना है आपसे ज्यादा कौन जानता है, क्लास में तो बैठना नहीं है ना, अभी ऑनलाइन भी आ गया, कहाँ बैठा किसको पता है, अभी मुझे भी पता नहीं, आपको, आप जानते हैं मैं कहाँ बैठा हूँ, एक डिफेंस अकेडमी में बैठा हूँ, उसलिए इंटरनेट उधर इधर जा रहा है, वो रिस्ट्रिक्शन रहता है इधर इंटरनेट, और पूरे ऑफिसर लोग रहे, मैं आके बैठ के सेशन ले रहा हूँ। ओके, और बच्चा लोग किधर बैठा हमको नहीं मालूम, सो दे नो वेयर टू सिट थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट आता है when is this acceptable unacceptable, then why is this a problem और challenge, ये जो मैं प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, एप्पल का कंप्यूटर और एप्पल फोन नहीं रहने से मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम है क्या, फोन के बिना भी लोग जी रहे थे, हमारे ग्रैंडफादर के जमाने में नहीं था भैया, मैं परसों झुमरी तलैया के वो पेड़ है ना, नीम का पेड़, उसके नीचे 10 बजे आऊंगा, ये होता था कम्युनिकेशन। और वो कम्युनिकेशन, वो वीकली बाजार होता था ना, मेला, वहां पर लोग मिलके बोलते थे भैया आपको अगले वो जो खरीफ सीजन आ रहा है उसका पहला दिन वो झुमरी तलैया में जो पहाड़ है उसके ऊपर नीम का पेड़ है, वहां 10 बजे आपको हमारे दादाजी मिलेंगे, तो वहां पर बंदा पहुंच जाता था झुमरी तलैया पे, ये होता था कम्युनिकेशन, नहीं तो कोई कबूतर होता वो बेचते थे। और ये मोबाइल तब से आया, ना खत दिख रहा है ना कबूतर दिख रहा है, फोन ही फोन है। और ये फोन कहाँ से आया, कभी मेज पे मिल जाता है, कभी शूज के पास मिल जाता है, कभी बाथरूम में मिलता है, और बच्चे लोग जानते हैं और कहाँ कहाँ फोन पहुंचता है, तो प्राइवेसी नाम का चीज नहीं रहेगा, ये आप अपने को डिस्टर्ब कर दिया मोबाइल एक्चुअली। पहले सोते थे लोग 8-9 बजे सो जाते थे, अभी कब सो रहे बच्चा लोग, देखो स्टूडेंट्स को, फैकल्टी तो अलग चीज है, काम रहता होगा,
स्टूडेंट्स कितने बजे सोते हैं एक्चुअल? मोबाइल आने से पहले शांति से नींद तो होता था और दिमाग भी सही चलता था और ये क्रिटिकल थिंकिंग सोचने का जरूरत भी नहीं था। अभी दिमाग नहीं चल रहा है, इसलिए हम सोच रहे क्रिटिकल थिंकिंग क्या है ना? तो ये सोचिए, इससे किसका बेनिफिट है, क्या लॉस है, मैं क्या कर रहा हूँ जिंदगी में, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी के लिए, देश के लिए, और खुद के लिए क्या कर रहा हूँ मैं। वो पैंट फाड़ा तो मैं फाड़ दिया, वो एप्पल लिया तो मैं एप्पल लिया, वो फिल्म गया तो मैं गया, वो एमबीए किया मैं भी, इसलिए एमबीए का नाम मैं भी आया। एक कंपनी का सीईओ बोल रहा था मेरे को, सर जी जानते हैं एमबीए का मतलब क्या है? मैं भी आया एमबीए। और एक बोला एमबीए का मतलब है माल बेच के आ। वो प्रैक्टिकल लोग है। एमबीए का मतलब कौन सा भी माल हो बेच देगा, कुतुब मीनार को चार मीनार के पास बेच देगा और चार मीनार को दिल्ली में ले जाके बेच देगा। वो स्मार्ट बंदे लोग होते हैं, वो भी है इसी क्लास में। तो आप क्या हो ये जानो पहले। एक इससे पहले भी सेशन हुआ था ना, आप लोगों ने करवाया था, नोइंग योरसेल्फ। वो भी पकड़ो, ये भी पकड़ो, देख लो क्या मिलता है। Why is this a problem challenge? जो प्रॉब्लम आप सोच रहे हो सही में प्रॉब्लम है क्या? नहीं भी हो सकता है ना? Is it relevant to me and others? रिलेवेंट है क्या मेरे को? Is this the best or worst scenario? अब इसके बाद जिंदगी नहीं है ऐसा लग रहा है क्या? 2 मार्क कम आ गए तो नजदीकी तीसरी मंजिल पे पहुंचो, उस पे से कूद जाओ। ऐसे लोग भी है ना, 2 मार्क कम है ना जिंदगी में, तो खत्म हो गई क्या जिंदगी? अब सचिन क्या सोचना चाहिए, वो 10वीं पास भी नहीं है ना सचिन तेंदुलकर। हम मार्क के लिए 3 मार्क के लिए अभी परसेंटेजेस देखो, कहीं भी नीट में देखो, एमसेट में देखो, कहीं भी देखो 80%, 90%, 95%। तो जो 80 से 85 आया वो सब लोग बेकार है। अभी 86, 87, 90, 95 के लोग ही जी सकते उसमें, सी टू सी को आएगा, बाकी लोग किधर जाना चाहिए? मतलब उनके पास माइंड नहीं है क्या? है ना? तो उनके लिए कोई और जॉब है। सब डॉक्टर बन गए, सब इंजीनियर बन गए, तो एक्टर कौन बनेगा, कंडक्टर कौन बनेगा, और कौन बनेगा, सॉफ्टवेयर कौन बनेगा? बहुत सारे फील्ड्स है दुनिया में। तो ऐसा नहीं सोचते ना लोग, सभी एमबीबीएस कर लिया मैं भी कर लूं, सभी इंजीनियर कर लिया मैं भी कर लूं। आप सूटेबल है क्या? ये चाहिए क्या? और कोई क्षमता है क्या आप में? ये सोचो। और क्या है? हाउ, लास्ट में क्वेश्चन आता है हाउ। हाउ इज दिस सिमिलर टू समथिंग? ये कंपैरिजन में मर जाते हैं ना लोग। उसके पास बीएमडब्ल्यू है, मेरे पास नहीं है। उसके पास 2-3 फ्रेंड्स है, जो भी बॉय हो गर्ल हो, 2-3 फ्रेंड्स उसके पास है, मेरे पास कोई नहीं। और फेसबुक में उसको आज 1000 लाइक आया, मेरे को एक भी नहीं है। वो मुंह से बोलना बंद है, फेसबुक में अगर लाइक कर दिया तो वो हीरो है। कितना लाइक्स आया यार आज तेरे को? वो क्या पोस्ट किया होगा? अरे यार आज भी आलू करी खाया, वैसे आलू हाथ में पकड़ के फोटो निकाल के फेसबुक में डाल देगा। नहीं तो बंदर रोड क्रॉस कर रहा है, उसका पिक्चर निकालेगा, फेसबुक में डालेगा, इंस्टाग्राम में डालेगा, भैया देखो, हाँ लाइक 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 लाइक, देखा मेरे को 1000 लाइक है। तुम्हारा टाइम भी बर्बाद हो गया, जो देख रहा है उसका टाइम भी बर्बाद हो गया, इंटरनेट भी खत्म, पैसा भी गया, टाइम भी गया, और बेकार में बैठ के चैटिंग कर रहे हो, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हो। एक ढंग का विषय लेके उस पर चर्चा करो ना यार। ये सब सोचना है आज का यूथ के लिए, इसलिए मैं आभारी हूँ आप सबका। ये टॉपिक चुना है आप लोगों ने और अभी तक शांत सुन रहे। अब दिल में बहुत कुछ चल रहा होगा, ये बोल दूं वो बोल दूं, इसलिए वो पहले माइक बंद करके रखे। उनको मालूम है कि कुछ भी बोल सकते हैं। ये बोलने का नहीं है बेटा, सब कुछ सोचना है। दिमाग को थोड़ा ऐसा आइडिया की खोपड़ा खुल जा बोल के फिल्म में बोलता है ना, ऐसा ऐसा सर पे मार के। पहले दिल पे मारते थे 3 इडियट्स में, ऑल इज वेल बोल के ऐसा छाती पे ठोक लेते। अभी सर पे मार लो अपना अपना। सोचो बेटा, थोड़ा सोचो कर। ओके, हाउ इज दिस सिमिलर टू समथिंग? हाउ डज दिस डिस्टरप्ट थिंग्स? डिस्ट्रप्शन टेक्नोलॉजी बोलते हैं ना, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी। अभी 5G आ रहा है, पहले लोग शांति से जी रहे थे, अभी आधा किलोमीटर दूर में भी उसका रेडिएशन पकड़ेगा। अभी फोन तो हम सर के नीचे रख के सोने की आदत है बहुत सारे लोगों को, अब क्या होता होगा दिमाग का हालत सोचो। आप कितना भी सेशंस लो क्रिटिकल थिंकिंग पे, फोन को सर के नीचे रख के सोएगा तो रेडिएशन से दिमाग आधा काम करना बंद ही कर देगा वो। हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली द हैबिट ऑफ कीपिंग द फोन नियर द हेड व्हाइल स्लीपिंग? सोच लो, बहुत इफेक्ट हो रहा है। देन हाउ डज दिस डिस्टर्ब थिंग्स?
how do we know the truth about this? How will we approach this safely? ये बहुत सारे क्वेश्चंस है, मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूँ, आप सोच लेना। अभी नेक्स्ट विजुअल देखिए, दिख रहा है? रिस्क टेकिंग, डाइवर्सिफिकेशन, एंटरप्रेन्योर स्किल, क्योंकि डिजाइन थिंकिंग है आपके पास, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब के लिए मदद करता है। नीचे जो विजुअल दिख रहा है वो आदमी कौन है? सज्जन दिख रहा है आपको स्लाइड पे नीचे कॉर्नर? Yes, sir. हाँ, उनका नाम है जेफ बेजोस। अमेजन का सीईओ है वो, फाउंडर सीईओ। अभी अमेजन पता है ना, कहीं से भी क्लिक कर दो, अमेजन प्राइम है, वो है, कहीं बैठो, जो लैंग्वेज आपको समझ में भी ना आए वो भी फिल्म दिखा देगा, नीचे सबटाइटल हिंदी में दे देगा वो। कोरियन फिल्म इन हिंदी सबटाइटल्स, जापानीज फिल्म इन मलयालम सबटाइटल्स, कुछ भी पॉसिबल है, टेक्नोलॉजी है। सो इट्स वेरी इजी, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज रेडी आपके लिए, आप क्या कर सकते हैं देखो। सो जो अमेजन का ओनर है, he worked like this in 1999। ये कहाँ बैठा है पता? तो टेबल देखो, टेबल का हालत देखो, सरकारी दफ्तर में भी इससे अच्छे होते हैं, है ना? ऐसा टेबल पर बैठ के, वो सीधा टेबल भी नहीं है, एक ही कंप्यूटर है, एक ही आदमी काम कर रहा है, और वहां टेबल भी नहीं है, वो क्या में कबर्ड भी नहीं है उसके पास। तो ऐसा एक बैनर रखा है, amazon.com 99 में शुरू किया था। आज देखो उसका 2017 में he was one of the richest persons in the world। क्या किया होगा वो? थोड़ा दिमाग लगाया है भैया, सब लोग दुकान में बैठ के बेच रहे हैं ना, मैं ऑनलाइन बेचूंगा, इतना ही सोचा हूँ। तो हाउ डिड इट हैपन? वो भी क्रिटिकल थिंकिंग किया थोड़ा। बुक्स, पहले बुक्स बेचता था, पेपर्स बेचता था, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स टू किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग बोल के, आपको पोएम लिखना है, किताब लिखना है, कविता लिखना है, लिख दो, ऑनलाइन डाल दो, किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग में आपका नाम पे वो रेडी छापेगा और बेचेगा भी, मार्केटिंग भी आपको करना नहीं पड़ेगा, सीधा घर पे रॉयल्टी आ जाता है। ये सर्विस स्टार्ट किया किंडल, एक बार ब्राउज कर लो, किसी ने देखा है गलती से, नहीं मालूम। व्हाई डिड ही थिंक ऑफ ई कॉमर्स? ई कॉमर्स में क्यों गया वो? बैठे बैठे दुकान में, नहीं तो एक गाड़ी में सामान डाल के घर घर बेच सकता था, वो भी आइडिया है ना। एमबीए वाले है तो बताओ मुझे, एक बड़ा ट्रक में सामान डाल के घर घर के पास जाके सामान ले लो, जूता ले लो, चप्पल ले लो, बोल सकता था? नहीं बोला, वो ऑनलाइन रख दिया, क्योंकि नियरली 70% पीपल ऑनलाइन कुछ ना कुछ देखते रहते, और मोबाइल पहले ही पकड़ा दिया था हाथ में अमेरिका वालों। अब लोग जो अभी छोड़ना ही नहीं चाह रहे उसको, जान भी छोड़ देंगे मगर मोबाइल नहीं छोड़ेंगे। अब देखो एक्सीडेंट में पहले फोन पकड़ लेते लोग और बाकी लोग वीडियो उतार रहे हो एक्सीडेंट का, तो सबके पास फोन है। वो गिरते समय पैसा नहीं संभालेगा, फोन को पकड़ लेगा, वो गिर जाएगा, हाथ टूटने दो, पैर टूटने दो, फोन नहीं टूटना चाहिए जी नहीं पाएगा बेचारा, उतना एडिक्ट हो गया उसको। और वीडियो गेम्स भी आ गए, पबजी तो बंद करवा दिया गवर्नमेंट। वो पबजी जब खेलता है तो 2-3 लोग वो बंदर लटकते हैं ना, ये इसमें झाड़ों पर, ऐसा ऑनलाइन लटकते रहते 3-4 लोग, और वो वहां से चिल्ला रहे, यहाँ से चिल्ला रहे, किसी को समझ में नहीं आ रहा है लड़का सडनली चिल्लाने क्यों लगा। रात को 11 बजे चिल्ला रहे, मारो यस वो के फाइन बोल के, वो पबजी खेल रहे थे। ऑनलाइन गेम्स अभी भी है, तो इतना एडिक्ट करके छोड़ दिया। तो वो सब स्टडी करके जब भी जो सोचा, इतने उल्लू लोग जब ऑनलाइन है, मोबाइल पकड़ के कुछ भी खरीदने के लिए जेब में पैसा लेके, और क्रेडिट कार्ड भी थमा दिया। भैया कोनो प्रॉब्लम नहीं है, पैसा नहीं है ना, कोनो इश्यू नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड खींचो ना यार, दादा परदादा का पैसा उसमें रहता है, आ जाएगा। आप नहीं भरा तो दादा परदादा जाके भर देंगे। पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, क्रेडिट कार्ड यूज करो, मगर क्रेडिट कार्ड में पैसा कहां से आएगा? पहले बैंक भर देगा, मगर आपको देना पड़ेगा, और उस पर इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। सो ये सब बिजनेसेस इंटरलिंक देख लिया, ये जब बिजनेस देख के ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट कर दिया। तो एक क्लिक करो, फेवरेट टी शर्ट है, कल सुबह तक घर के सामने हाजिर है। आपको नॉर्मल पैंट है तो ठीक है, 1000 रुपये मिल जाएगा। फटा हुआ पैंट है 2000 है, उसका रेट ज्यादा है, क्योंकि वो फाड़ने के लिए वो चाकू भी को इस्तेमाल किया ना, आपको दिक्कत लेने का कोई जरूरत नहीं। पहले फाइटिंग करके लोग फाड़ते थे, पहले अभी फटा हुआ रेडी मिल रहा है, और डिजाइनर वेयर करते कहते हैं उसको, उसका रेट ज्यादा है। नॉर्मल पैंट 1000 है, जीन्स मिनिमम बता रहा हूँ मैं,
अभी और स्ट्रेच जीन्स, स्टार्च जीन्स, उसमें बहुत वेराइटीज है, स्टोन वॉश, ये वो कहानी करोगे तो ज्यादा है। सो ये सब मार्केटिंग टेक्निक ये यूज किया। घर में बैठा है, क्लिक मारो, घर के पास प्रोडक्ट पहुंचा और जब भी जो उसका जेब में पैसा पहुंच गया। इज इट क्रिएट, अभी ये स्टोरी ठीक है, इज इट क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल? क्या सोचते हैं आप लोग, बताओ। क्रिटिकल है, क्रिएटिव है, क्या लग रहा है? वो सोचते रहिए, मैं इतने में मैं विवेकानंद जी कुछ कह रहे हैं, बताता हूँ। द ब्रेन एंड मसल्स मस्ट डेवलप साइमल्टेनियसली, iron nerves with an intelligent brain, and the whole world is at your feet. iron muscles बोल रहे हो, steel nerves and gigantic will power, ये चाहिए। मतलब क्या है? आयरन मसल्स कहाँ है, देखो मेरे को। आधा घंटा चला तो बैठ जाएगा, आजकल का यूथ ऐसा है। उसलिए आजकल लड़कियां जब शादी करने जाते हो तो बोलते हैं भैया 1 किलोमीटर भाग के दिखाओ, भाग सकता है? और मैं अरब वर्ल्ड में काम किया था, वहां के लड़कियां स्वीट बांट रहे थे। एक दिन मेरे स्टूडेंट्स, क्या हो गया बेटा स्वीट बांट रहे हो? बोला अरबिक लोग। वो बोले सर शादी तय हो गई। अरे वेरी गुड बेटा, मगर तुम क्यों लड्डू बांट रहे हो? आपका बाप तो आंखों में आंसू लेके बैठे होंगे कहीं, क्योंकि बेटी की शादी हो रही है। अरे सर आप नहीं जानते, अरब कंट्री है सर, हमको पैसा मिलने वाला है उल्टा। बोले अरे वाह, ये इंडिया में किसी को नहीं बताना। बोला क्योंकि यहाँ तो घर वालों को देना पड़ता है ना दहेज में, वहां पर उल्टा है। तो बॉय का परिवार को देना पड़ता है, बॉय को ही देना पड़ता है, इसलिए वो ज्यादा मेहनत करता है, जल्दी पढ़ेगा, जल्दी जॉब लेगा, पैसा कमाएगा, तब शादी करेगा। चलो वो तो एक एग्जाम्पल है। हाउ डू यू मेक योर माइंड स्ट्रॉन्ग? विवेकानंद जी बोले, बहुत सारे पीर पैगंबर बहुत लोग आए, बोले आदमी जो रहना था वही रह गया, कुछ बदलाव नहीं आया। बहुत लोग बहुत कुछ बोल गए। आयरन मसल्स, स्टील नर्व्स, जाइगेंटिक विल पावर, चिल्लाते चिल्लाते 100 साल पहले वो बोल के वो दुनिया से भी गुजर गए विवेकानंद जी। मगर कितने स्टील नर्व्स है अपने पास, कितना आयरन मसल है, कितना जाइगेंटिक विल पावर है, सोच लो बेटा। वो बनाने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए। अभी क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, देख लो जल्दी से, बताओ क्या दिख रहा है? कुछ रेस्पॉन्सेस आ रहे हैं क्या चैट विंडो में? नो सर, अभी तो नहीं आ रही है सर। गाइस प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स। रोटेशन सर, समवन इज सेइंग रोटेशन। हाँ 155 लोग हैं, देखते हैं कितने लोग सोच रहे हैं। अब तक तो ब्रेन खुल जाना चाहिए। अब रिस्पांस धीरे आ रहा है। रोटेशनल इमेजिनरी। अच्छा ये बताओ, एक्चुअली इज इट रोटेटिंग? नो। क्यों लग रहा है रोटेशन? दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल इल्यूजन। साइकोलॉजी में है ये ऑप्टिकल इल्यूजन, जो दूर से, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है ऑप्टिकल इल्यूजन, साइंस का, मगर उसमें साइकोलॉजी है। जो इंसान सोच रहा है ना, वो आउटर सर्किल में और इनर सर्किल में सोचते रहते हैं। सम स्मार्ट पीपल नो दैट नथिंग इज हैपनिंग देयर, और थोड़े लोगों का सोचने का नजरिया कम होता है, उनका डोमेन भी कम है, होराइजन भी कम है, वो लोगों को दिख रहा है कि वो घूम रहा है। तो यही होता है, जब सोचने लगोगे ना, ऐसा ही होता है दिमाग में। वो क्यों हो रहा है, अब साइकोलॉजी प्रोफेसर लोग ज्यादा बता सकते हैं, मैं जोड़ा थोड़ा जो भी सीखा हूं उसमें बता दूंगा। ब्रेन का फंक्शंस, राइट और लेफ्ट ब्रेन रहता है हर इंसान में, और राइट साइड क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, लंबा लिस्ट दिख रहा है ना, वो होता है फंक्शन दिमाग में, और लेफ्ट ब्रेन में लॉजिक, एनालिसिस, ये सब होता है। वो दो मिलके, ये फंक्शंस मिलके आपको माइंड में इमेजेस क्रिएट होते हैं। तो आप कैसा सोचना है आप ही डिसाइड करोगे, आप ही ट्रेन करोगे आपका ब्रेन। ट्रेनिंग द ब्रेन कॉन्सेप्ट है। उसलिए महान आलोचक बोलो उनको, या मनोवैज्ञानिक बोलो, सही है ना? मनोवैज्ञानिक हिंदी में ऑनलाइन टीचर को पूछना पड़ेगा फिर। महान मनोवैज्ञानिक और फिलोसोफर को क्या कहते हैं? यस मैम, थैंक यू सो मच। मनोवैज्ञानिक तो साइकोलॉजी में,
हाँ, दार्शनिक, फिलोसोफर, वेरी गुड, विजनरी। हाँ, ये सोक्रेटिस थे जिनको पॉइजन दे के मारा गया। दुनिया में कुछ भी सच बोलो, कुछ भी अच्छा काम करने जाओ, कोई ना कोई रहता है, एक चाकू लेके बैठेगा, कोई ऊपर से पत्थर फेंकेगा। इनको जहर दिया गया। क्यों? उनका गलती क्या था? लोगों को एजुकेट कर रहे थे वो। तो वो बोले मरते मरते, स्मार्ट पीपल लर्न फ्रॉम एवरीथिंग एंड एवरीवन। दूसरों को देख के स्मार्ट पीपल सीख जाते हैं। एवरेज पीपल फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस, अपना खुद का एक्सपीरियंस से एवरेज लोग सीखते हैं। मतलब कोई गिर गया, वो कैसा गिरा, कैसा मार लगा, उसको समझ में नहीं आएगा। वो क्या करेगा? वो भी गिर के एक मार खा के, हाँ ऐसा होता है, अच्छा ठीक है, वो एवरेज पर्सन है। स्टूपिड पीपल ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर। नेटवर्क इशू फिर हुआ, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, कोई है? सर आया आवाज। सर आपकी आवाज जा रही है बीच बीच में, मे बी अभी आ रहा बिकॉज है? ऑफ। यस सर, अभी आ रही है। हाँ, नहीं वो लता मंगेशकर जी का गाना है ना, मेरी आवाज ही कुछ है ना वो गाना, यस, पहचान मेरी है। आवाज ही मेरी पहचान। हाँ, Yes. ऐसा चीज हो। अभी रिस्पांस जब नहीं आता है तो मुझे एक गजल याद आ रहा है, दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है। और क्रिटिकल थिंकिंग है ना? हाँ चलिए, रेस्पॉन्स बाद में लेते हैं, अभी एक विजुअल देखो, फटाफट रेस्पॉन्स दे दो मेरे को। गाना भी बहुत अच्छा है। क्या मैडम? फ्री माइंड, आइडेंटिफाई द वे ऑफ थिंकिंग, वेरी गुड। इट्स क्या please put your comments after seeing this picture. What are you all thinking? Think mind. Waiting for train to come. Discussion. मैं सोच ही रहा था ये जवाब क्यों नहीं आया। हाँ जी, Peace. Free from everything. Discussion. Life. ये जो ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं ना, वो बहुत इनोसेंट टाइप के बच्चे हैं जो रिस्पॉन्स लिखे हैं वो लोग। Relax. Conversation. Yes sir. By discussion. बाकी उनको छोड़ देते हैं, वो क्रिटिकल थिंकिंग सवाल था तो Yes उस sir. पे ज्यादा जोर नहीं देना है। अभी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लिए, देखो ये है सही क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। डू यू थिंक दैट द जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल बी सेम एज बिफोर? अभी जो पैंडेमिक से गुजर के बाहर आए हो, अभी अभी खुला है दुनिया, तो जॉब रोल्स कैसे बदलने वाले हैं, क्या क्या नया जॉब्स उभरने वाले हैं मार्केट में, ये सोचने लगा, ये चाहिए। डू यू थिंक दैट द बिजनेस एनवायरनमेंट विल बी डिफरेंट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स? ये अगर सोचते रहेंगे, बाय द टाइम यू पास आउट फ्रॉम अंडरग्रेड और पोस्ट ग्रेड, यू विल बी रेडी। और ये इंडस्ट्री रेडीनेस के लिए लॉ वाले, एजुकेशन वाले, मैनेजमेंट वाले कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाते रहते। हम भी जाते रहते उधर इधर, जो भी बचा कुचा नॉलेज है वो शेयर करते रहते हैं, तो ये भी हेल्प करता है। डू यू थिंक दैट योर एग्जिस्टिंग स्किल सेट विल डू? अभी जो स्किल सेट है आपके पास वो काम आएगा? मतलब व्हाट्सअप चला सकता हूँ सर, मैं फेसबुक में एक्टिव हूँ, ऐसा इंटरव्यू में बोलेगा तो कौन सा जॉब मिलेगा बोलो? इंस्टाग्राम पे रोज 100 पोस्ट किए बगैर मैं खाना भी नहीं खाता हूँ, ये भी क्षमता होता है, ये सब स्किल्स है। मगर ये चलेगा क्या? नहीं तो मेरे पास एप्पल है सर, नहीं तो और कुछ है सर, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देता है क्या? जिसके पास भी एप्पल फोन हो, कल आ जाओ, मुकेश अंबानी सबको लाइन में खड़ा करके जॉब देने वाला है। और कोई एमबीए और एलएलएम और एलएलबी जो भी है, एनी डिग्री, वो सोच रहा होगा एक एक गेट पर टाटा खड़ा है और एक गेट पर बिरला खड़ा है, मैं कब बाहर आऊं, मेरा इंतजार कर रहा है, डिग्री लेके मैं ऐसा बाहर जाऊंगा, वो लोग आके गले मिलेंगे और ले लो बेटा आपका जॉब, कितने साल से हम इंतजार में थे आपके लिए। ऐसा लग रहा है क्या?
ये सोचो, ये क्रिटिकल थिंकिंग है। व्हाट चेंजेस आर यू एक्सपेक्टिंग नाउ इन द फॉलोइंग स्पेशलाइजेशंस? मैं 2-3 ही लिखा मगर बहुत कुछ स्पेशलाइजेशंस हो सकते, मार्केटिंग वाले, HR वाले, फाइनेंस वाले, साइकोलॉजी वाले, लॉ वाले, मेडिसिन, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर स्टडी। आपका स्पेशलाइजेशन में चेंजेस क्या आ रहे हैं? ऑलरेडी आ चुके हैं। 2 साल में बहुत कुछ हुआ दुनिया में। हम लॉकडाउन में थे ना, बाहर दुनिया बहुत बदल गया। इन योर व्यू व्हाट काइंड ऑफ न्यू जॉब्स इमर्ज्ड रिसेंटली? ये भी सोचो। आर यू प्रिपेयर्ड टू चेंज एज पर द कॉर्पोरेट एक्सपेक्टेशन? सेक्टरल चेंजेस भी है। हाउ डू यू बिगिन टू चेंज? कहां से आप चेंज शुरू करेगा? वेयर डू यू बिगिन योर ट्रांसफॉर्मेशन? एटीट्यूड बदलेगा, स्किल बदलेगा कि नॉलेज बदलेगा? सबसे पहले तो ये एटीट्यूड कौन सी चिड़िया का नाम है, स्किल क्या है, नॉलेज क्या है, ये समझना जरूरी है ना। उसके बाद सोचो कहां से शुरू करेगा। किसी का एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है मगर स्किल में 0 है, स्किल बहुत है मगर नॉलेज बिल्कुल नहीं है, नॉलेज बहुत है स्किल नहीं है, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। ये कॉम्बिनेशन देखो, 3 चाहिए दुनिया में। डिस्क्राइब योर स्ट्रेटेजी बिलो इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब अपना अपना एक कागज पेन कहीं से उठा के मांग के खरीद के लाके, अगर ऑलरेडी है गलती से हाथ में तो लिख दो, एटीट्यूड मेरा ऐसा है। आजकल गलती से पढ़ लेते हैं बच्चे, क्योंकि फेसबुक और ट्विटर से फुर्सत मिले तो पढ़े ना। तो एटीट्यूड में कहाँ, आके साइकोलॉजी वालों को पूछ लो। और भी पता नहीं चला अपने नजदीकी दुश्मन से पूछ लो। और भी नहीं पता चला तो जो जैसा लगता है मगर अंदर से दुश्मन है ऐसा वाले को पकड़ो। नहीं तो और भी टाइप है, दुश्मन दिखता है मगर अंदर बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो ऐसा वाले को पकड़ो, वो बता देगा आपका एटीट्यूड क्या है। आपके पीछे लोग क्या कहते हैं उससे पता चल जाता है। एक्चुअली सामने तो बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लोग खुश भी होते हैं। स्किल्स क्या है आपके? कम्युनिकेशन अच्छी है क्या? इंटरपर्सनल स्किल अच्छी है क्या? लीडरशिप है क्या? टीम बिल्डिंग है क्या? इमेजिन करना लगे मैं बहुत बड़ा लीडर हूं, मैं अमिताभ बच्चन हूँ, रजनीकांत हूँ, सोच सकता है अंदर। हमारा हैदराबाद में बोलते हैं मैं तोप हूं, मैं बंदूक हूं, ऐसा भी बोल सकता। ठीक है, क्या स्किल है? नॉलेज कौन सा लेवल पे, कितना पानी में हो तुम? इंटरव्यू से बाहर आया एक बंदा, उसको पूछे क्या हुआ यार, बोलता अरे वो मेरे कंपनी पसंद नहीं आई यार। है कंपनी पसंद नहीं आई कि तू उसको पसंद नहीं आया? ये सेल्फ रियलाइजेशन नहीं रहता, ऐसा ही फेंकता है। चेहरा पसंद नहीं आया कि एटीट्यूड पसंद नहीं आया, स्किल पसंद नहीं आया, नॉलेज पसंद नहीं आया, और कुछ है क्या अपने में कमी, ये ढूंढो। और कोई फिलॉसफी डायलॉग झाड़ देता है, आके बोलता है अरे अपनों ने क्या लूटा यार, हमारी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। अच्छा बेटा। तो और एक बोलता है बाजू से, तेरी बुद्धि तो हमेशा कम थी, जहां पानी कम था वहां गायज कहीं कुत्ता तुम, पहले ये बताओ, बोलता है वो। तो ये है क्रिटिकल थिंग। वहां जाओ ही नहीं ना, जहां पानी कम है क्यों गया उधर? अब आके डायलॉग मार रहे हैं वो कम पानी में कश्ती डूब गए, ऐसा कैसा हो सकता? पानी देख के चलाओ ना यार। तो ये स्टूडेंट का कन्वर्सेशन हम सुनते रहते पीछे पीछे से, वहीं से पकड़े, नहीं तो कौन सा भी किताब में लिख के नहीं रहता है। एंड व्हाट इज योर प्रेफरेंस, जॉब और करियर? क्या अंतर होता है बेटा, जल्दी बता दो। जॉब और करियर में कुछ अंतर है? 3:30 तो बज ही गए। हाँ देखो समय कैसा भागता है। हम 2:10 से सोच रहे थे कितने लोग आए, 10-20 थे, अभी 151 है। ठीक है, गुड नंबर, गुड इंटरेस्ट, और 99 चार्ट्स दिख रहे हैं मेरे को इधर। जॉब वी डू एंड करियर वी लिव। सर एक कमेंट आया है, जॉब वी डू एंड करियर वी लिव। हाँ बोलिए। सर आप दोनों जॉब भी अंडर बॉस जीने के लिए एंड होते करियर हैं। यू आर बॉस। अच्छा, अगर खुद का बिजनेस है तो एंटरप्रेन्योरशिप अगर कर लिए तब अपना बस जॉब इज वर्क यू डू व्हाइल करियर इज बिल्ट एज पर योर इंटरेस्ट। आप ही हो। हाँ ये सही है, करियर लंबा होता है, जॉब छोटा होता है, दैट इज ट्रू। करियर में वी बिकम बिजनेसमैन एंड इन जॉब वी ऑलवेज बिकम एम्प्लॉय।
दैट इज ट्रू, करियर लंबा होता है, जॉब, मगर थोड़े लोग करियर के लिए पढ़ते हैं जॉब। ओके, व्हाट्स योर चॉइस, जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप? ये क्वेश्चन पूरे बनाया मैं आप लोगों के लिए, मैं मेरे पास लिंक है, भेज देता हूँ, आप उनसे शेयर कर लीजिए, स्टूडेंट्स भरेंगे तो अच्छा है। मैडम? यस सर प्लीज। आवाज आ रही है? यस सर आ रही है, आप शेयर कर दीजिए सर। हेलो, यस सर आ रही है आवाज, आप शेयर कर व्हाट्स सकते हैं योर सर। जनरल एटीट्यूड? डिस्टर्बेंस आ रहा है। यस How सर, do you थोड़ा deal with rejection, failure? How do you deal with frustration, feel about success? What are existing skills? कल्याण सर, हेलो। आई थिंक सर का फिर से नेटवर्क में इशू हुआ है कुछ। सर विल बी ज्वाइनिंग इन अ मिनट और टू, सो प्लीज वेट। I hope you all are enjoying this session. So please put it in the chat. What are you feeling after between this session? How you all are feeling in this? जब तक सर rejoin कर रहे हैं, so please give your comments कि आप लोगों को session interesting लग रहा है तो कैसे लग रहा है? I mean, what you all are, आप लोग क्या सही में critical thinking करने लगे? Very nice. हाँ नाइस, सर से बात हुई, लॉग इन हो रहा है सर। हाँ जी मैम, जी मैम। IQ level is increasing. Very nice. Good opportunity to introspect. Very good. खुद को introspect करना is very important. True. सर मैम जब तक सर ज्वाइन कर रहे थे तो मैंने पार्टिसिपेंट से पूछा कि भाई आप लोगों को कैसा लग रहा है ये सेशन अटेंड करके। सो दिस इज ऑल वी आर गेटिंग, सो अपनी मेहनत का दिख रही है और सर का इतना अच्छा जो फॉरेस्ट एरिया है वो, इसलिए इंटीरियर है, इसलिए नेटवर्क इशू आ रहा है। कल सर हैदराबाद में होंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। यस मैम, सर ने बताया ना कि डिफेंस एरिया में है सर, तो वहां पर वैसे ही नेटवर्क इशू रहता है। यस मैम, कमेंट्स आप पढ़ के देखिए, बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग, क्रिटिकल थिंकिंग विल बी स्टार्टेड, इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। सर जब तक रिजॉइन करना है मैंने कहा यही देख लें अपन। ज्वाइन कर रहे हैं सर, रिजॉइन कर रहे हैं। यस ग्रेट गोइंग, wonderful. Refreshing. It was very interesting session. ये ऑफलाइन ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है जब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ एक्टिविटीज होती हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। यस मैम हम आगे जाके अपन प्लान करते हैं, अब तो ऑफलाइन हो गई है सारी चीजें। के सेशन में एक्टिविटीज बहुत होती हैं तो उसमें इंटरेस्ट भी आता है बच्चों को, जी सब लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं उसमें। यस मैम, सब अपन ट्राई करते हैं मैम, अब तो ऑफलाइन हो गया है सब कुछ, वी विल ट्राई कि हम सर को यहाँ पे कैंपस में लाएं तो अपने बच्चों को और ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी। बच्चे आ जाए ऑफलाइन। मतलब अब सर का सेशन के बाद तो अच्छे सर का नाम लेके तो आएंगे ही आएंगे, जो चीजें आ रही है। यस मैम, हेलो मैम, सॉरी चलिए अभी अंत में आ गए हम, एंड में देखते हैं। हाँ अभी कोई सवाल है तो ले लेंगे। सर बिफोर दैट आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग विथ यू।
बोलिए। दैट के आप जब तक रीजॉइन कर रहे थे मैंने स्टूडेंट से पूछा कि हाउ वाज योर सेशन, हाउ यू ऑल फेल्ट विद दैट, आप लोगों को कैसा लगा, तो बहुत अच्छे कमेंट्स आए सर, थैंक यू सो मच। आप खुद भी देख सकते हैं, मतलब वेरी नाइस। आप वो चैट विंडो पूरा कॉपी करके एक वर्ड फाइल में डाल के भेजिए मेरे को, और रिकॉर्डिंग श्योर तो आ ही श्योर जाएगा। ओके, श्योर सर, श्योर श्योर तो श्योर श्योर। फाइनली थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आपका बिजी शेड्यूल में से थोड़ा समय हमें दिया आप लोगों ने सुनने के लिए, और हमको मौका दिया गया बोलने के लिए। सो दोनों तरफ से धन्यवाद है, और हम आभारी है। ओके, क्योंकि आजकल का जनरेशन मिलता नहीं है, कहीं पकड़ नहीं सकते, ऑनलाइन पकड़ सकते हो, फेसबुक में ट्विटर पे पकड़ सकते हो, डायरेक्ट नहीं मिल सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो थैंक यू। तो जनरल एटीट्यूड चेक करें, फ्रस्ट्रेशन क्यों आ रहा है, गुस्सा क्यों आ रहा है, सक्सेस को कैसा फील होते हो, फेल्यूर कैसा लेते हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। फेल्यूर फेस करना बहुत कम लोगों में हिम्मत है, ये हिम्मत ज्यादा करो तो सक्सेस हो जाओगे। और एग्जिस्टिंग स्किल देखो, टाइमलाइन बनाओ, एक मैं 1-2 साल में क्या करने वाला हूँ, प्लान बी क्या है जिंदगी में। अगर ये हार गया तो जाके नजदीकी नदी में कूद जाऊं, या ऐसे ही बैठ के सोचूं कि चलो भाई और भी कुछ कर सकते। जैसा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, वो टेस्ट पायलट इंटरव्यू में फेल हो गए थे देहरादून में। हाँ, पहले फेल्यूर से शुरू हुआ, तो फिर जाके वो पर्वत पे चढ़ के वो कूदने वाले थे, एक हाथ आके उनको रोक लेता है। वो थे कोई स्वामी जी, वहां घूम रहे थे, भैया क्या कर रहे हो, बस हो गया टेस्ट पायलट फेल हो गया, हम मर जा रहे। अरे भैया, और कोई बड़ा चीज वेट कर रहा होगा आपके लिए, थोड़ा रुको ना, दुनिया को एक और एक मौका तो दो आपका जानने के लिए हुनर। तो फिर आके बाद में क्या हुआ आपको पता है ना, रेस्ट इज द हिस्ट्री। अगर उस दिन छोड़ दिए थे स्वामी जी, आज कलाम जी नहीं होते ना, है भी नहीं अभी। तो ऐसा होता है, तो एक नाजुक मोमेंट में चलो मैं मर जाता हूँ, जाओ भाई मरो। और मरने के लिए नदी पे पहुंचे, बड़ा तालाब जो भोपाल में है, उधर पहुंचे, तो कूदने के लिए गए, और एक आके हाथ आके रोक लेगा, क्या हुआ भैया, मरने की भी आजादी नहीं है इंडिया में, भैया आपका नंबर 473 है, ये टोकन ले लो, 2 साल के बाद आना, बाकी लोगों को तो मरने दो, तब आप कूदना, ऐसा बोलने वाले। तो वहां भी कंपटीशन है बेटा। ये मत सोचो कि मरना आसान है, मर के ट्राई करके देखना, ट्रू। सीरियसली नहीं करना, मजाक कर रहे थे। तो वहां पर भी कंपटीशन है, और मैं इतने लोगों को जानता हूँ जो मरने का कोशिश किए 4-5 बार, बहुत 50,000 भी खर्च कर लिया वो मरने के लिए, नहीं मर पाया वो, फिर किसी ने पकड़ के हॉस्पिटल में डाला, फिर वो जाके कोरोना पेशेंट से जिंदगी गुजार के आया 1 वीक, फिर भी कोरोना नहीं लगा। देखो भगवान कितने अच्छे होते, मरने नहीं दिए। बेटा कोरोना भी तेरे कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा है, तो पहले बैठ के सोचो मैं कहाँ हूँ भाई जिंदगी में, 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, कल परसों में शादी भी कर देंगे मेरे माँ बाप, मगर मैं जिंदगी में क्या किया, पढ़ लिया, शादी कर लिया, और हो गया जन कल्याण, नहीं हुआ ना, कुछ तो करना है जिंदगी में। अब फॉरेन वालों को देखो तो स्टीव जॉब्स वो ये सब करके मर गए, वो लोग कुछ नहीं कर पाए। इधर देखो तो कबीरदास कुछ भी नहीं पढ़े, वो फिर भी महान हो गए। बोलते थे ना वो नदी के बाजू में बैठ कैसा देख के, नहाए दुहाए क्या हुआ जो मन में मैल समाए, मीन सदा जेल में रहे धोए बास न जाए, बोल गए। वो 6th क्लास में हमारी हिंदी टीचर थी, आजकल तो ऑनलाइन टीचर है, मगर 6th क्लास टीचर एक छड़ी लेके हाथ फैला, बेटा 2-3 मार के अभी बता कबीरदास जी क्या बोल रहे थे, भूल गए मैडम, और एक मार लगता था, अब बता बेटा, हाँ ये ऐसा बताए थे मैडम, क्या बताए थे, नहाए दुहाए क्या हुआ, मतलब क्या है, तो कितना भी नहा लो, फेयर एंड लवली लगाओ, लक्स लगाओ, कुछ भी लगाओ, कुछ होने वाला नहीं है। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन में मैल समाए, मन में देखो बेटा, कहाँ होता है मैडम मन, हमको पता नहीं है, वो जान जाएगा, तू तुरंत जान जाएगा, सुनते रहो बस, मन में मैल समाए। अगर नहाने धोने से, ब्यूटिफिकेशन करने से अगर आदमी सुंदर बनता तो बहुत लोग बन जाते। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन में मैल समाए। फिश को देखो बेटा, वो जिंदगी भर पानी में रहता है, और उसको बाहर निकालेगा इतना गंदा बांस आता है, क्यों, पानी में रहने से अच्छा रहना चाहिए ना, 24 आवर्स में ही रहता है, फिर भी नहीं आ रहा। इतना बड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन जो आदमी को सोचने पर मजबूर कर देता है, वो कबीरदास जी पूछे, वो कौन सा भी स्कूल में नहीं गए थे। तो
Does education give us knowledge, skills, attitude? That is one question. अगर नहीं मिल रहा है तो क्या करना चाहिए? थैंक्स टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी पूरा इंटरडिसिप्लिनरी वो ये कर रहा है, वो कुछ नया नहीं है, वो पुराना ही है वो भी। ओके, पंचतंत्र स्टोरीज देख लो आप, जातक का स्टोरीज देख लो, कौन सा भी भगवत गीता कुरान जो भी देख लो आप, हर चीज में कुछ अच्छा कहा गया, वो उसमें से ले सकता है ले। अगर नहीं होता है तो ऐसे लेक्चर सुन लो, जो समझ में आया समझ लो, जो नहीं समझ में आया नाइस मैडम के पास जाओ, नहीं तो किरण मैडम के पास जाओ, रेखा मैडम भी बैठे हैं उधर, तो सब लोग समझा देंगे, मगर आपको समझने का माइंड चाहिए। ओके, अगर माइंड नहीं है, हमेशा फेसबुक में ट्विटर में घुसा है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कितने लोग सोचते हैं कि मैं फेसबुक में एक्टिव रहने से मेरे को जॉब मिलेगा और ट्विटर में मेरे को 2000 कांटेक्ट रहने से मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ऐसा कोई सोच रहा है? हो सकता है, पता नहीं, कोई अगर एंटरप्रेन्योर मिल गया, अब आ जाओ बेटा जितने भी ट्विटर पे, कल से आ जाना जॉब पे, हो सकता है सर, सोचने में कोई गलती नहीं, मगर जानो। और क्या है, टाइमलाइन बना लो, अचीव द गोल्स एंड प्लान भी तैयार रखो। अगर मैं फेल हो गया इतना करके भी, सर वो कह दिए, सब लोग कह दिए, मैं ट्राई भी किया, कोशिश भी किया, है वो फिल्म में बच्चन बोलते हैं ना, वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब हो जाती है ना? तो ट्राई करो, देखते हैं क्या होता है। अगर गलती से कुछ सीख लिया ये सेशन में और एक्सीडेंटली कुछ समझ में आ गई, तो मेल में लिख दो, नहीं तो आपका वो फीडबैक फीडबैक जो भी लेते हैं उसमें लिख देना। और कोई क्वेश्चन है तो बोल दो, समय तो हमारे तरफ से समाप्त है, और ईमेल दे दिए उधर हम, अब लिंक भेज यस देता हूँ मैडम, वो जरूर भरवा देना बच्चों से। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप अरे भेज फिर दीजिए भी सर। 140 बच्चे मैडम, मैं सोचा 2 बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट होने से आधा गायब हो जाएंगे, और थैंक्स नहीं टू सर, यू यूर सर आप नहीं सर, आपके सेशन से नहीं हो सकते। नहीं नहीं ऐसे नहीं दिस रहना इज अ मैडम। प्रूफ। थैंक यू सो मच कल्याण सर फॉर बीइंग विद अस, और अपने इतने बिजी शेड्यूल में से गिविंग योर थैंक्स फॉर द वैल्यूबल टाइम। अपॉर्चुनिटी मैडम, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी, जो आप लोग बुलाए हमको, इस काबिल समझे कि हम कुछ कह सकते हैं, वो बहुत बड़ी बात है ना। नहीं सर, हमारा क्या है, हम तो कहीं से कुछ भी बोलते नहीं सर, कुछ भी नहीं, आप बहुत कुछ बोल रहे हैं। हैं। अच्छा बहुत और कुछ ऐसा बोल दिया, बोल रहे हैं सर तो जो हमारे नॉट। हिंदी टीचर को थैंक्स बोलेंगे आज, पूरा हिंदी ये में किया मैडम, मैं थोड़ा 10% अंग्रेजी इस्तेमाल किया आज मैं, तो पास हो गया ना मैं हिंदी में, राइट। यस सर। सर मैं इस सेशन के लिए सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि सर आपने ये, इट्स नॉट ओनली यूजफुल फॉर आवर स्टूडेंट्स, मतलब हम इंडिविजुअली भी मैं अगर बात करूं तो हम सबके लिए, इवन वी आर दी फैकल्टी मेंबर्स, वी आर दी प्रोफेसर्स एंड एवरीबडी इज देयर, बट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उन हम लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड थैंक यू सो मच सर। और जो आपने चीज कही कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सर आपने कही कि टाइमलाइन, टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ट्राइंग फॉर दैट टाइमलाइन, के आप कोशिश करते रहे, कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है वो चीज होगी ही होगी। थैंक यू सो मच सर। और एक और इम्पॉर्टेंट बात सर जो आपने उसमें कही कि यू शुड गो फॉर द प्लान बी, यू शुड हैव अ प्लान बी ऑलवेज, यू आर एब्सोल्युटली ट्रू इन दैट सर। और ब्रेन को ट्रेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जब हम ट्राई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आवर ब्रेन विल गेट ट्रेन्ड। और इन आई होप कि मेरे जितने हम सबके स्टूडेंट्स हैं एजुकेशन के, इसमें लॉ के, हम सब प्रोफेसर्स भी, सब लोग इसको बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे कि अपने ब्रेन को ट्रेन करें। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। नाउ मूविंग फर्दर, आई रिक्वेस्ट Dean Dr. Nilesh Sharma, Law, RNTU, to please give a formal vote of thanks to our speaker. Over to you, sir. Okay, thank you, nice madam. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay. Good Sorry, afternoon. sir. Sorry to interrupt you, sir. Sir, I think sir disconnect हो गए. So let's wait for a minute. Sir rejoin कर लेंगे तो वो ज़्यादा better रहेगा कि only a second, sir.
Feedback form will be shared tomorrow with day 1 and day 2 both. I think just wait. 2 मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट, बट क्या कर सकते हैं सर, वो उनके सर जहाँ पे है वहाँ पे थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा Yes, sir. अगर 2 मिनट नहीं होते तो उसको वाइंड अप कर सकते हैं। Yes, sir is there. Okay. Sir is there. So good afternoon all. As good thing come to an end in life, so is the first day of this workshop. Myself, Dr. Nilesh Sharma, Dean and Professor, Institute of Law, Rabindranath Tagore University, Bhopal, take this opportunity to propose vote of thanks to those who have directly or indirectly contributed to the first day of workshop conducted on virtual mode. At the outset, first of all, I would like to thank our keynote speaker, Dr. Kalyani Chakravarti sir, who is an international speaker, visiting professor and life skill coach at Hyderabad. We enjoy a lot of your session, sir. Your speech was truly inspiring and thought-provoking. Thank you, sir. I would also like to thank our patron guide, Dr. Brahma Prakash Petia, sir, Honorable Vice Chancellor, RNTU Bhopal, Dr. Sangeeta Johari, ma'am, Honorable Provisor, Rabindranath Tagore University, Bhopal, respected Nitin Bas, sir, Head IIC, RNTU Bhopal, Dr. Sanjeev Gupta, sir, Dean Academics, for their support and kindness. I also convey special thanks to the organizing team, Department of Education and Institute of Law, Rabindranath Tagore University, Bhopal, and IIC team members, along with my technical team, for their kind support and coordination. I also convey my special thanks to Dr. Kiran Mishra ma'am, Dean Education, Rekha Gupta ma'am, Professor, Education Department, and Nais Jamir, HOD Law, for organizing such a wonderful workshop. My heartfelt thanks to my students, all faculty members, for their active participation. With these warm words and kind message, we move to an end of today's session of 2 days workshop. Thank you all. We will meet tomorrow at the same time with another topic. Okay. Thank you so much, sir. Thank you, Kiran ma'am. Thank you, Rekha ma'am. And thank you all the participants. Tomorrow, 2:30, again, same time. Same time. With Kalyan, sir. कल नेटवर्क इशू नहीं होगा, ज्यादा अच्छे से हम शायद सुन पाएंगे सर को. Okay, thank you. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, Rekha ma'am. Thank you, Kiran ma'am. Thank you, Nilesh sir. And thank you all the participants. Thank you so much. Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you, ma'am. I think internet. Thank you. Yes, sir. There is an internet issue. Thank you so much, sir, for giving your valuable time. Thank you so much, sir. Tomorrow at the same time. Thank you. Thank you, madam. Same Thank time. you. Thank you so much. Dr. Kiran, Dr. Rekha, nice ma'am, everybody, for the opportunity. Yes. Thanks to your VC sir and the management. Thank you so much. Yes. Chat Thank you save so कर लीजिए और Sure, sir. video. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Namaskar. Bye bye. Namaskar, sir.